Hello students, in this video we are discussing some other important topic of chapter, some basic concept of macroeconomics. Topics are four sectors of the economy, circular flow, intersectoral flow and significance of this circular flow of income. This is the last video of this chapter where I am discussing some important topics. Four sectors of the economy. From the macro point of view, economy is often divided into four sector. Macro point of view से जो economy है इसको four sectors में divide किया हुआ है. First is household sector, second is producer sector, third is government sector and fourth one is the external sector, which with also called rest of the world, means in this we will include import and export. First we will study household sector. It includes consumers of goods and services. Household are also the owners of the factor of production. Household sector में हम लोग आते हैं जो goods and services के consumers हैं, जो जिनका यूज़ goods and services का जो यूज़ करते हैं वो household sector में आ जाते हैं. Households are also known the owners of the factor of production. Factor of production 4 होते हैं, land, labor, capital and entrepreneur. तो इसके जो owner होते हैं वो household sector ही होंगे. Producer sector. It includes all producing firms in the economy. Producing firms units means हुआ manufacturing units. From the production of goods and services, the firm hire, purchase, factor of production, land, labor, capital and entrepreneur skill from the household. अब producer sector जो है वो किस पे dependent होता है factor of production के लिए, क्योंकि वो production कर रहा है. factor of production चाहिए तो production factor कहाँ से मिलेंगे? household sector से उसको मिलेंगे. means producer sector is dependent on the household sector. Third is government sector. It includes government as a welfare agency and government as a producer. जब हम government के sector की बात करते हैं तो हम government की तो बात करते हैं, पर दो views में हम government की बात करेंगे, two views में हम government की बात करेंगे. One is welfare agency and the second one is producer. Government work as a welfare agency, perform welfare functions such as law and order and defense. And as a producer, government produce some goods and services like rifles and weapons for the defense. Next, fourth is external sector or rest of the world. It includes all such activities which are related to the export and import of goods and flow of capital between domestic economy and the rest of the world. Means in this we are talking about international trade. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरसेक्टरल फ्लो. हमने 4 सेक्टर पढ़े इकोनॉमी के. इन्हीं ये चारों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ फ्लो रहता है. मींस गुड्स का आदान प्रदान कह सकते हैं, या हम सर्विसेज का आदान प्रदान कह सकते हैं, या एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं ये. ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंडेंट्स ऑन अदर इन वन वे और अदर वे. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस. फर्स्ट पॉइंट I am reading, that is the household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services needed for consumption. हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है. किस चीज़ के लिए? क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और हाउसहोल्ड सेक्टर उनको कंज्यूम करता है. तो हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर. बट इन सेकेंड पॉइंट, द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड पे किस तरह डिपेंडेंट है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. मतलब दोनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. हाउसहोल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है वो इस रीज़न से डिपेंडेंट है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो डिपेंडेंट है हाउसहोल्ड सेक्टर पे क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं जिनके थ्रू प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है. द गवर्नमेंट, थर्ड वन इज द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज. अब गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन से इनकम होती है वो मेनली 2 सेक्टर से ही होती है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउसहोल्ड सेक्टर. मींस गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के लिए, अपनी इनकम के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड सेक्टर पे. फोर्थ वन इज producer and household sector depends on the government for administrative services besides law, order and defense. अब जो हमारी हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं? गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए. सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस और दिस इज नोन एज इंटरसेक्टरल फ्लो. either in the form it is either in the form of goods and services or in the form of money. Intersectoral flow in the form of money is known as, is called as money flow. Underline it. Intersect
sectoral flow in the form of money is called money flow, and intersectoral flow in the form of goods and services is known as real flow. अब इसको हम डीप में पढ़ते हैं कि मनी फ्लो क्या है और रियल फ्लो क्या है. रियल फ्लो मीन्स होता है, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फ्लो, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज देने की बात करते हैं, उनके फ्लो की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल फ्लो की बात कर रहे हैं. फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड सेक्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो. इन फिगर number 2 illustrates real flow in case of simple two sectors of the economy including household sector and producer sector. अब मैं आपके सामने फिगर नंबर 2 शो करूंगी. उसमें इन्होंने बताया है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो उसमें वो रियल फ्लो कैसे शो करते हैं देखिए. इन फिगर नंबर 2 here real flow in 2 sector economy is shown. ओके, सो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है क्या? प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए. एरो देखिए डाउनवर्ड वाला, इन्होंने बोला है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज. बदले में अपवर्ड वाला एरो देखिए, बदले में प्रोड्यूसर्स क्या प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स. गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म. हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स. नेक्स्ट टॉपिक इज money flow. What is money flow? Money flow refers to the flow of money across different sectors of the economy. अब जब हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोड्यूसर को देगा, तो बदले में प्रोड्यूसर क्या देगा? लैंड को देगा रेंट, लेबर को देगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट. और बदले में जो प्रोड्यूसर है वो मनी के फॉर्म में क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि अब प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा और वो किसको सेल कर रहा है? हाउस होल्ड को. तो हाउस होल्ड से वो क्या लेगा? मनी लेगा, मतलब उसकी जो प्राइस होगी वो लेगा, जो गुड्स की प्राइस होगी वो लेगा. तो वो मनी फ्लो की कैटेगरी में आ जाएगा. मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी. जब हम रियल फ्लो की बात करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, पर जब हम मनी फ्लो की बात करते हैं तो सिर्फ हम मनी की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मनी ओनली. मनी फ्लो रेफर to the flow of money across different sectors of the economy. Flow of factor payments, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो बदले में इनको जो पेमेंट मिलते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर पेमेंट्स. Flow of factor payment by the producer sector to the household sector on account of purchase of factor and factor services, and flow of money from household sector to the producer sector are the example of money flow. It needs to be noted in that the money flow are just a reciprocal of the real flow. Just इसका reciprocal है. In figure number 3 they show you what is money flow. You see figure number 3. In figure number 3 money flow in a 2 sector economy is given. हाउस होल्ड सेक्टर जो है, अपवर्ड वाला देखिए एरो, हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको क्या मिलता, वो क्या देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को? एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो खर्च करता है पैसा, वो खर्च किया हुआ गुड्स खरीदेगा तो पैसे देगा, वो पैसा किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर के पास जाता है. अब डाउनवर्ड वाला एरो देखिए, जो प्रोड्यूसर हैं वो पैसा कुछ अपने पास भी रखते हैं और कुछ फैक्टर पेमेंट्स के तौर पे किसको दे देते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर को वापस दे देते हैं, क्योंकि वो लैंड का पेमेंट करेंगे, लेबर का पेमेंट करेंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे. तो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स द मनी इज गिवन बैक टू द हाउस होल्ड सेक्टर. दिस इज द मनी फ्लो. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप. अंडरलाइन इट. ये 3 एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी में कभी नहीं रुकती हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, generation of income in the form of wages, interest, rent, profit and expenditure. गुड्स का प्रोडक्शन, इनकम का जनरेशन और एक्सपेंडिचर, ये कभी नहीं रुकता. इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज आर लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज. इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगनिंग ऑफ दीज एक्टिविटी एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोडक्ट देयर एंड. ना आप इसके स्टार्टिंग का पता कर सकते हो, ना आप इसके एंड का कोई प्रोडिक्शन कर सकते हो. प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल. ये कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं. दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट बिगनिंग और एन एंड. जैसे कि सर्कल का
कभी कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता, उसी तरह इन एक्टिविटीज़ का ना कोई बिगनिंग होता है ना कोई एंड होता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स, अंडरलाइन इट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. In fact, production, income and expenditure are the three phases of the circular flow in the economy. 3 phases हैं ये circular flow के. Here a diagram of 3 phases of circular flow is given. ये circular flow का एक diagram दिया हुआ है. 3 phases of circular flow, that is disposal of income in the form of expenditure. Then it is given to the producer sector. Producer sector produce goods and services, means production of goods and services, and then generation of income, or income is given to the factor of production. Next we discuss the phases of production. Production refers to value addition. Production का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फेज जो है वो प्रोडक्शन है. अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब होता है वैल्यू एडिशन. When wood worth ₹5,000 is converted into chair worth ₹10,000, then there is value addition worth ₹5,000. आपने 5,000 की लकड़ी परचेज की और उसको चेयर, उस लकड़ी से आपने चेयर तैयार की, तो आपके 5,000 और लग गए. तो अब वुड की वो जो चेयर की कॉस्ट है वो कितनी हो गई? 10,000. तो आपने अपने साइड से कितना वैल्यू एडिशन किया? 5,000. सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन मीन्स, फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में हमने 3 फेजेस पढ़े. एक प्रोडक्शन होता है, एक जनरेशन ऑफ इनकम होता है, और एक होता है एक्सपेंडिचर. तो जो फर्स्ट वाला फेज है ना प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन का फेज यही है. द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड हु आर द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. दीज फैक्टर input are used along with non-factor input, raw material etc. for the production of goods and services. अब producing sector क्या करता है? Factor of production, land, labor, capital, entrepreneur, इनका यूज़ करके नॉन फैक्टर इनपुट जो होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल. तो अब जैसे लेबर काम करेगा, वुड से चेयर तैयार करेगा, तो जो वुड हो गया वो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो लेबर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा. तो जब फैक्टर इनपुट नॉन फैक्टर इनपुट से जुड़ जाते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है. गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. दीज आर, there is no end of human wants, accordingly there is no end to the process of production. क्योंकि human wants तो अनलिमिटेड होती हैं, इनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती, कभी इनकी जो wants हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती. इसीलिए जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस चलती रहती है. जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो होता है इनकम जनरेशन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन और फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस किसको प्रोवाइड करी है? प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करी है. और अब ये बदले में क्या चाहेंगे? रेंट फॉर लैंड, interest for capital, wages and salary for labor, and profit for entrepreneurship. From the viewpoint of household, these are factor income. अब जब आप देखो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बात करोगे तो प्रोड्यूसर के व्यू से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. पर अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर के व्यू से देखोगे, जनरेशन ऑफ इनकम के व्यू से देखोगे, तो जो रेंट है लैंड के लिए, वो रेंट क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड के व्यू से फैक्टर इनकम्स में कैटेगरी में आ जाएगा. इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब फैक्टर इनकम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फेज 1, नाउ द वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम. जो फेज 1 में प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, अब वो फेज 2 में क्या फैक्टर इनकम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और फेज ऑफ डिस्पोजिशन. वेयर डज इनकम गो. अब ये जो इनकम जनरेट हुई है फैक्टर इनकम के तौर पे हमने किसको दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम दी है प्रोड्यूसर ने, अब वो इनकम जाएगी कहाँ? सो इट इज़ स्पेंड और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये कहाँ जाएगी? क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? ये जो पैसा उसको मिला है, इनकम जो उसको मिली है, वो खर्च करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे. और गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की है? प्रोड्यूसर ने. तो अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास जा रहा है? प्रोड्यूसर के पास जा रहा है. When household buy final goods, there is a consumption expenditure. When the producer buy the final goods, there is a investment expenditure. Thus, in phase 3, there is a expenditure of income as a consequence of generation of income in phase 2. phase 2 में जो इनकम जनरेट हुई थी उसके रिजल्ट के तौर पे अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो एक्सपेंडिचर करेगा, तो phase 3 जनरेट होगा. The story does not stop here. Consumption expenditure and investment expenditure generate demand for goods and services in the economy. This
this again causes production of goods and services and consequently the generation of income. There is non-stop flow of goods and services, generation of income, and disposition or expenditure of income. Each flow keeps chasing the other flow, that is why it is called as circular flow. Considering the three phases together, we find that in the two sector economy. अब आप ये थ्री फेजेस को साथ में लेके एक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करिए. उसमें बताया हुआ है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे फ्लो होगा. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू income generated is equal to expenditure. This is triple identity. This is illustrated through two sector circular flow model. अब इन्होंने जो ये आइडेंटिटी है ट्रिपल आइडेंटिटी, इसको टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल से बताया हुआ है. फिगर नंबर 5, सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की हुई है जहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और बदले में जो पिंक वाला एरो है अपवर्ड साइड, उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. तो बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो ग्रीन वाला एरो है. तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको इनकम मिलेगी. अब हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या देता, क्या है हाउस होल्ड सेक्टर, फैक्टर सर्विसेज देता है, मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है. तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हें क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है. तो जो डाउनवर्ड वाला है वो हो जाएगा रियल और मनी दोनों का ही एग्जाम्पल साथ में लिया हुआ है इन्होंने. Means these two sector, producer sector and household sector, are dependent on each other. This is called circular flow model in a two sector economy. There are certain assumptions of this model. कुछ मान्यताएं भी हैं इस मॉडल की. फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है देयर इज़ ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी. मीन्स वैसे तो हमने 4 सेक्टर पढ़े हैं इकोनॉमी के, पर इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर्स लिए हुए हैं. अज्यूम किया है एक की सिर्फ एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है. सेकेंड पॉइंट, द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम सो दैट देयर इज़ नो सेविंग्स. इन्होंने ये अज्यूम किया है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको जितना भी इनकम जनरेट होता है वो सारी इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर के जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन पर सारा पैसा खर्च कर देते हैं. पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ में कुछ सेविंग्स भी होती हैं. पॉइंट नंबर 3 इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इन्होंने ये अज्यूम किया है कि ये इकोनॉमी जिसकी ये बात कर रहे हैं जिसमें 2 सेक्टर हैं, ये एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है और इट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी. मीन्स यहाँ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है. एंड फोर्थ पॉइंट इज देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. गवर्नमेंट तो होती है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है. अभी इन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि कोई गवर्नमेंट इसमें नहीं है. ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि इस मॉडल से आपको क्या समझ में आता है, तो ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय द फर्म. इन्होंने बताया है कि जितना फैक्टर पेमेंट होगा उतना ही वैल्यू एडिशन होगा. सेकेंड पॉइंट बताया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इन्होंने इसमें ये बताया है कि जितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होगा वो हमेशा किस चीज़ के इक्वल होगा, जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेंगे उस चीज़ के इक्वल होगा. एंड थर्ड पॉइंट, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल identity circular flow model. Now significance of circular flow model is given. This is last topic of this chapter. From the study of this circular flow model we got 2 main point of significance. First one is it is useful for estimation of national income. Circular flow model facilitates or useful for the estimation of national income. National income is the sum total of factor incomes flowing from producer to household of the country. It may also be defined as the market value of goods and services flowing from producer to the other sectors in the economy. It may be defined as sum total of expenditure on goods and services produced by the producer sector. यहाँ पे इन्होंने 3 डेफिनेशन बताई हुई हैं आपको नेशनल इनकम की. तो मेन सिंपल जो लॉजिक है वो ये है कि जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है उसके थ्रू हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में हम गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं. एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना फैसिलिटेशन हुआ है हम उसको ही लेते हैं, या कितनी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई हैं हम उनको ही लेते हैं. सो अगर हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है तो सर्कुलर फ्लो मॉडल हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सेकेंड इज नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस. अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. वी लर्न हाउ कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस.
अगर हम सर्कुलर फ्लो मॉडल को नहीं पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे जो हमारा कंज्यूमर सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कंज्यूमर सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है। तो इस चीज़ के नॉलेज के लिए सर्कुलर फ्लो मॉडल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये इसके 2 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैं एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।